Thank you, Lord. We welcome you all this morning to our Sunday service. Go ahead, Brother Solomon. Praise the Lord. We welcome you all to our Sunday service online. हम आप सभी को हमारे संडे के सेवकाई में स्वागत करते हैं। And today we want to invite Brother Vibin from the US to bring us the word. आज हम ब्रदर विपिन जो यूएस से है उन्हें हम स्वागत करते हैं। And it's over to you, Brother Vibin. Praise the Lord. Once again, greet everyone in the name of Lord and Savior Jesus Christ. मैं एक और बार आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम पे स्वागत करता हूं। I want to thank Lord and Pastor Mahesh for giving us an opportunity to share from the Word. मैं परमेश्वर को और पास्टर महेश जी को धन्यवाद देता हूं कि हमें इस प्रकार का एक अवसर दिया परमेश्वर के वचन से बांटने के लिए। I also want to thank Brother Solomon for translating me. और मुझे भी प्रभु के दास धन्यवाद देते हैं कि आज उन्हें अनुवाद करने का मौका भी परमेश्वर ने मुझे दिया। And I'm very glad as we both share this stage or the platform, because once our fathers worked together or prayed together, Solomon's dad. Go ahead, Solomon. मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं कि एक समय पर मेरे पिताजी और हम दोनों के पिताजी ब्रदर विपिन के पिताजी और मेरे पिताजी साथ में परमेश्वर के वचन बांटते थे। My dad, when he started a ministry in Danu, Alex uncle, who is resting in the Lord, would come after the Sunday service, and then we have to take a train. We weren't a part of the church. So, Alex uncle was a part of Boiser Church. जब शुरुआत के समय पर मुंबई में धानु जहां पर विपिन ब्रदर के पापा जी वहां पे सेवकाई करते थे और मेरे पापा हम बोईसर चर्च में थे, तो सेवकाई के बाद मेरे पापा जो है ट्रेन लेकर धानु में जाया करते थे। And Alex uncle would join us to sit with us in prayer because my father had just started that ministry. It's 15 years back, I would believe. और मेरे पिताजी पास्टर जी के साथ विपिन ब्रदर के पापा जी के साथ बैठकर प्रार्थना में समय बिताते थे, क्योंकि उन्होंने तभी सेवकाई शुरू की थी। मैं विश्वास करता हूँ ये 15-20 साल पहले की बात है। And today, by God's grace and in God's plan, here we are doing it together. Amen. और आज देखिए इतने साल बाद हम दोनों को साथ में एक मंच पर परमेश्वर की वचन बांटने का मौका परमेश्वर ने दिया है। And I believe Brother Solomon is utilizing his talents and doing the Lord's ministry wherever he is. Amen. और मैं ये विश्वास करता हूँ कि ब्रदर सोलोमन जहाँ पर वो है परमेश्वर की सेवकाई के लिए परमेश्वर ने जो उन्हें तालन दिया है परमेश्वर के काम के लिए इस्तेमाल करते हैं। God bless him and use him mightily. Amen. 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 Today's portion where we're gonna meditate or we are gonna share from the portion of the Bible, the title it says, The Road of Hope to Faith. आज मैं जो वचन आपसे बांटने जा रहा हूँ उसका शीर्षक इस प्रकार विषय इस प्रकार है कि आशा से विश्वास तक का मार्ग। Many times we take road, or literally speaking, when we take a path, we have a hope or the faith in the mode of transportation or where we are going. जो भी मार्ग में हम सफर करते हैं हमें एक आशा होता है, एक विश्वास होता है कि जो भी मार्ग जो भी किस तरह हम उस मार्ग में सफर करेंगे। Today we're going to think from Luke chapter 24. लूका रचित सुसमाचार उसके 24वें अध्याय से हम जरा विचार करेंगे आज। From the verse 13 onwards, we're going to read a couple of verses and share my thoughts. 13वां वाक्य से कुछ वचन हम पढ़ेंगे और उस वचन से मैं कुछ चिंताएं आपसे बांटना चाहता हूँ। This portion is after the resurrection of Lord Jesus Christ. ये जो वचन यहाँ पर लिखा गया है यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद जो लिखा गया वो वचन है।
Bible records at least 8 times in 40 days that Lord appeared in different places and different location at different times. यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद वचन के वेद पंडित इस प्रकार कहते हैं कि 8 दफा यीशु मसीह ने जो है अपने आप को प्रत्यक्ष में जो है 8 दफा वो अपने चेलों से और अनेक लोगों से जो है अपने आप को उन्होंने प्रकट किया था. And this portion speaks about two disciples who is taking a road to Emmaus. और यहाँ पर ये जो अध्याय में दो चेले जो है एमोस की ओर अपने सफर करते हैं उनके बारे में लिखा गया है. I've read this portion couple of times or heard from sermons. मैंने अनेक वचन इस अध्याय से सुना है और अनेक 2-3 दफा इस वचन को मैंने पढ़ा है. But what really put me to the thought is, why did Jesus appear to these two disciples in those 40 days? पर एक चीज मुझे जो चिंता दिलाया वो ये है कि क्यों यीशु मसीह इन दो व्यक्तियों को यहाँ पर उनके बीच में वो प्रतिष्ठित हुए. Let's start with the verse Luke chapter 24 verse 13 and 14. मैं 24वें अध्याय लूका रचित सुसमाचार उसके 24वें अध्याय का 13वां और 14वां कलाम हम जरा पढ़कर देखें. That very day, two of them were going to a village called Emmaus, about 7 miles from Jerusalem. Verse 14, and they were talking with each other about all these things that had happened. देखो उस दिन उनमें से दो जन एमोस नाम के गांव की ओर जा रहे थे और यरूशलेम से कोई 7 मील की दूरी पर था और वे इन सब बातों पर जो हुई थी उस पर अपनी बातचीत करते जा रहे थे. So the verse continues with a series or an incident that had happened, and it starts stating that something had happened, and after that they decided to go to Jerusalem. ये वचन की शुरुआत जो है 13वां वाक्य से इस प्रकार होता है कि कुछ तो घटना घटी है और उस घटना घटने के बाद ये जो दो चेले हैं या जो व्यक्ति जीवन है वो घटना घटने के बाद अपने सफर जो है वो एमोस की ओर कर रहे हैं. As I stated, it says about the resurrection it is after the resurrection of Jesus Christ. जिस प्रकार मैंने पहले याद दिलाया कि ये पर यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद का एक घटना है. And the resurrection of Jesus Christ is the hope and the truth and the living life of Lord. यीशु मसीह का पुनरुत्थान जो है वो आशा, विश्वास और परमेश्वर यीशु मसीह का जीवन को जो है प्रतीत करता है. And I would like to go to verse 15 and 16. 15वां और 16वां कलाम हम जरा जब देखते हैं. While they were talking and discussing together, Jesus himself drew near and went with them, but their eyes were kept from recognizing him. परंतु उनके 15वां कलाम हम जरा पढ़ते हैं. और जब वे आपस में बातचीत और पूछताछ कर रहे थे तो यीशु आप पास आकर उनके साथ हो लिया, परंतु उनकी आंखें ऐसे बंद कर दी गई थी कि वे उसे पहचान ना सके. One of the key words or the point of this portion is their eyes were restrained. Amen. एक बहुत ही बहुमूल्य चीज जो हमें यहाँ पे ध्यान देना है कि उनकी आंखें जो है वो बंद की गई थी. And that made me think again. और वो जो वाक्य है मुझे वापस चिंता में डाल दिया. The other point is Jesus drew near them. और दूसरा वाक्य ये था कि यीशु मसीह जो है उनके पास आ गए. Many a times we associate with our friends, families, or our fellow church members. What kind of conversations do we engage in? अनेक दफा जो है हम अपने परिवार के सदस्यों के साथ अपने मित्र छात्रों के साथ जो है हम बात करते हैं और किस प्रकार के बातचीत जो है हम उनके साथ करते हैं. Does our conversations attract or draw Lord's attention, or does it make him painful or give opportunity for devil to open doors towards sin? क्या हमारे बातचीत परमेश्वर को हमारी ओर आकर्षित करता है? क्या परमेश्वर हमारी ओर हमारी बातचीत सुनकर आता है या फिर शत्रु को हम एक द्वार खोल कर दे रहे हैं कि वो हमारे जीवन में प्रवेश कर पाए? I'm going to skip a couple of verses and I'm going to say what it says.
in the following verses. कुछ दो तीन वाक्यों को मैं यहाँ पर दो तीन वाक्यों के आगे मैं जाना चाहता हूँ यहाँ पर। So the Lord kept their eyes restrained, परमेश्वर ने उनकी आंखें बंद रखी, and then Lord acted as if He doesn't know. And since their eyes were restrained, Lord asked them, "What are you guys talking about?" और जिस प्रकार उनकी आंखें बंद थी तो यीशु मसीह ने उनसे पूछा कि आप लोग किस बात पे बात कर रहे हो। If you look in the Bible, in Old Testaments, there were a couple of times when the servant of Abraham, women Hagar or Paul's, their eyes were restrained or closed or put in darkness. अगर आप जब पुरानी नियम देखेंगे तो अब्राहम उत्पत्ति की किताब में हम पढ़ते हैं कि हागार की आंखों को परमेश्वर ने जो है बंद किया था। And when I say this, it's very clearly stated they were around and they couldn't see what was there until the Lord opened their eyes. मैं जब ये कहता हूं कि परमेश्वर ने उनकी आंखें बंद की थी, इसका मतलब यह है कि शायद वो कुछ देख ना पाते थे। जब तक परमेश्वर ने उनकी आंखें खोली नहीं, तब तक वो आज अगल बगल के कोई चीज को देख ना पाए। Yes, the verses doesn't say their eyes were open, but they could see what Lord had provided for them. जो है वचन ये नहीं कहता है कि उनकी आंखें बंद थी, परंतु परमेश्वर ने जो उनके लिए दिया था वो चीज वो देख नहीं पाए थे वो समय। Similarly, here Lord walks with them as a stranger, and they think he's a person who is taking that road, and they start describing what had happened, how Jesus died, how he was crucified, and the portion goes on. आमीन। वो वचन हम जब आगे पढ़ते हैं, एक एक वाक्य जब हम पढ़ते हैं तो यीशु मसीह उनसे पूछते तुम किस बात पे बात कर रहे हो, और ये चेलों की आंखें बंद थी इसलिए उन्हें पता नहीं था कि ये कौन है, और वो यीशु मसीह को ये बताते हैं कि कौन यीशु मसीह करके व्यक्ति था, उनका मृत्यु हुआ, वो तीसरे दिन पुनरुत्थान जीवित पाए। ये सारी चीजें जो है वो मसीह को बताते हैं, ना जानते हुए कि वो मसीह है। And the chapter 24 verse 20 and 21, it states like this. I'm going to read that verse. And how our chief priests and rulers delivered him up to be condemned to death and crucified him. Verse 21, but we had hoped that he was one to redeem Israel. Yes, and besides all this, it is now the third day since things happened. Amen. 20 और 21वां वाक्य जब हम पढ़ते हैं, और महायाजकों और हमारे सरदारों ने इसे पकड़वा दिया और उस पर मृत्यु की आज्ञा दे दी और उसे क्रूस पर चढ़वाया, परंतु हमें आशा थी कि यह इस्राएल के छुटकारा देगा, और इन सभी बातों से सिवाय इस घटना को हुई तीसरा दिन है। And the word chapter 13, it didn't just say that they were disciples, it just says two of them. In some of the translation, it says two of the disciples. आमीन। अलग अलग परिभाषाओं में अलग अलग से इसे व्यतीत किया गया है, पर अब 13वां कलाम में जो है उन्हें चेले कर नहीं अनुमोद करते हैं, परंतु दो व्यक्ति होकर जो है उन्हें अनुमोद करते हैं। And the verse 20, it said, how our chief priests and rulers delivered him to be condemned to death and crucified him. आमीन। 20वें वाक्य में ये कहते हैं कि किस प्रकार महायाजकों ने और सरदारों ने इन्हें पकड़वा दिया और उन्हें मृत्यु की आज्ञा देकर सूली पर चढ़ाया। That's there. This two of them, either they were disciples or they were closely associated with disciples. It clearly states that they were walking with Jesus. When we continue reading further, we could understand that. ये जो दो व्यक्तियां हैं, शायद ये चेले थे या चेलों के साथ इनका अच्छा रिश्ता था, और वो इस प्रकार बात करके जाते हैं। जब हम आगे पढ़ते हैं तो ये समझ आता है कि वो यीशु मसीह के बातचीत पर जो है बहुत ही उत्साहित थे। That's the misconception they had. That's the false teaching they were carrying with themselves to Emmaus. और ये एक गलत चिंता या एक गलत शिक्षण जो है इनके साथ था, जो वो एमोस की ओर जो है ये चिंता के साथ जा रहे थे। Because the chief priest and the rulers, Lord gave himself to them to be condemned and crucified. They did not do it to him. देखिए, महायाजकों ने और सरदारों ने यीशु मसीह को सूली पर नहीं चढ़ाया, परंतु यीशु मसीह ने खुद अपने आप को उनके हाथों में सौंपा था। It's not me saying, it's a scripture portions saying that Jesus would always talk to the disciples that I would be crucified,
this body would be destroyed and it will be built in the 3 days. He was talking this in reference to the church of Jerusalem, but he was talking about himself. देखिए, ये मैं नहीं कह रहा हूं, परंतु पवित्र वचन ये कहता है, और यीशु मसीह ने खुद अपने चेलों को ये बताया था कि तीसरे दिन मैं सूली पर चढ़ा जाऊंगा, मुझे पकड़ा जाएगा, तीसरे दिन मैं जी उठूंगा, कर यीशु मसीह खुद अनेक दफा अपने चेलों से ये बात करते हैं. And the verse 21 it says that they hoped that he would redeem Israel, yet besides it's the 3rd day and they are again carrying the wrong message to Emmaus. देखिए 21वां कलाम में हम ये पढ़ते हैं, परंतु उन्हें आशा ये था कि इजराइल को वो छुड़ा देंगे, परंतु आज तीसरा दिन हुआ है और वो ये बात को जो है एमोस तक जो है वो ले जा रहे हैं. That's why the title says the road of hope to the faith. और इसीलिए जो है हमारा शीर्षक या विषय ये था कि आशा से विश्वास तक का मार्ग. Yet they were carrying a false teaching or a wrong misconception. They hoped, they had a hope, and there was a small light of hope within them. देखिए, उन्हें एक आशा था, उन्हें एक विश्वास था, एक रोशनी भर की एक विश्वास उनके अंदर थी, परंतु एक गलत चिंता के साथ जो है वो एमोस की ओर सफर कर रहे थे. And still today, in world, most of the people or some of them believe that Jesus is still a prophet, or he is the Lord of the Christians, or he is limited to only the Christians. देखिए, आज भी संसार में ये चिंता अनेक लोगों के मन में है कि यीशु मसीह जो है वो एक भविष्यवक्ता है या फिर केवल ईसाई के परमेश्वर है. इस प्रकार की अलग चिंताएं जो है आज भी अनेक लोगों के मन में है. That's not true. Our Jesus Christ is the Lord of the whole universe. Amen. परंतु ये सच नहीं है. यीशु मसीह संसार के परमेश्वर है. If you're listening for the first time, we want to tell you that Jesus Christ died for your and my sin. He rose again and he's living today and he is coming back soon. अगर आप पहली बार इस प्रचार को सुन रहे हैं तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि यीशु मसीह जो है वो आपके लिए और मेरे पापों के लिए उनका मृत्यु हुआ था. तीसरे दिन वो जी उठे और बहुत जल्द वो दोबारा आएंगे हमें ले जाने. And many believers just wanted to use Lord or come near to Lord just to know their future, to hear prophecy, but not act accordingly. Because whenever a prophecy is done, it has a clause. You have to do, you have to pray, you have to fast, but we only hear the blessing or the future prospects or the prosperity that is going to come us. We are not ready to pay the price for what we are yet to receive. Amen. अनेक विश्वासी जो है आज भी जो है केवल भविष्यवाणी सुनने के लिए परमेश्वर की वचन के आसपास आते हैं, परंतु उस भविष्यवाणी की पूर्तिकरण के लिए जो है प्रार्थना, उपवास और जागरण करने के लिए जो है हम तैयार नहीं होते हैं. उसके पीछे का जो दाम चुकाना होता है उसे करने के लिए हम अनेक दफा तैयार नहीं होते हैं. This portion similarly states that these two were carrying a wrong message, as the Lord wanted us, you and me, like me and Solomon, to state and be a witness to the living Lord that he is alive and he is coming back. देखिए, ये जो वचन जब हम आगे पढ़ते जाते हैं, ये दो व्यक्तियां जो है एक गलत संदेश लेकर एमोस की ओर जा रहे थे, परंतु परमेश्वर ये चाहता है कि मुझे और ब्रदर विपिन के साथ कि हम डटे रहे, हम यहाँ पे टिके रहे और परमेश्वर की सच्चे वचन को जो है आगे लोगों तक पहुंचाएं. In the verse 24 verses 23 it says, and when they did not find his body, they came back saying that they had even seen a vision of angels who said that he was alive. मैं 23वां कलाम में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, जब उसकी लो ना पाई तो यही कहती हुई आई कि हमें स्वर्गदूत का दर्शन पाया जिन्होंने कहा कि वह जीवित है. In Hindi it says he is alive, but the English translation it says he was alive. Amen. हिंदी परिभाषा में इस प्रकार कहा जाता है कि वो जीवित थे, परंतु अंग्रेजी परिभाषा में इस प्रकार कहते हैं कि वो उस समय जीवित थे. Again, it doesn't state why they were going to Emmaus, but it states that they were talking about it. Amen. ये यहाँ पर ये नहीं कहा गया कि क्यों वो एमोस की ओर सफर कर रहे थे वो दो व्यक्ति जीवन, परंतु वो लोग बातचीत कर रहे थे कर हम यहाँ पर देखते हैं. Many a time it appears to be us that the Lord is silent, or he's not answering our prayers, or he's not listening to us, or many a times we might not say it out loud, but we might say it out of frustration to our friends, family. Why isn't Lord answering my prayers? देखिए, अनेक दफा
हम जो है हम अपने दोस्तों के बीच या परिवार के बीच, अपने प्रियो के बीच में ये कहेंगे कि परमेश्वर बहुत ही जो है बहुत शांत है, या मैं परमेश्वर की आवाज सुन नहीं पा रहा हूँ, क्यों परमेश्वर मुझसे बात नहीं कर रहे? Similarly, the Lord restrained himself to the two of them to know what their desire in their heart is, or what they think about what happened, because the Lord knew once he drew near to them what they were talking, but he acted himself as a stranger. देखिए, यीशु मसीह जब इनकी ओर आकर्षित हुए थे या इनके पास जब गए थे, मसीह जानते थे कि ये क्या कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, परंतु मसीह ये देखना चाहते थे कि इनकी बातचीत क्या है, क्या ये मेरे बारे में समझते हैं और क्या बातचीत ये कर रहे हैं। इसीलिए परमेश्वर ने जो है अपने Not only that, for 3.5 years, he was with them, teaching them, showing miracles and impossible miracles that their high priest or the Jewish culture or whatever their faith was didn't happen, or it was questioned what Jesus was doing as per the law. पवित्र वचन या फिर उस समय के जो कानून के अनुसार जो है 3.5 साल परमेश्वर ने सेवकाई की, और अनेक चमत्कार और चिन्ह जो है जिस उस समय पर जो फरीसियों ने कभी ना देखा, वो सारे चिन्ह मसीह ने जो है उनके सेवकाई के बीच में किया था। I would like to take a statement from Pastor Mahesh's promo video last week. मैं एक वाक्य जो पास्टर महेश के प्रोमो वीडियो से जो पिछले हफ्ते उन्होंने रिलीज की, उससे लेकर कहना चाहता हूं। He said, correction is a gift. उन्होंने इस प्रकार कहा कि हम जो गलतियां सुधारते हैं वो एक तोहफा है। Many of us don't realize that, or we get agitated or frustrated when somebody corrects us. देखिए, जब कोई हमें सुधार की सुझाव देता है, हमें वो अनेक दफा पसंद नहीं आता है, हम जो है उन्हें गुस्से से देखते हैं। But that's a gift indeed. परंतु वो एक तोहफा है हमारे लिए। Why I say that, if you take the scripture from the beginning till the end, Lord always corrected when someone was wrong, and if they took that correction, they submitted themselves, confessed themselves, God blessed them and changed their situation. Rather they rebelled, they were put to death, or they vanished from the whole earth. देखिए, जब हम इस वचन की शुरुआत से जब हम पढ़ते हैं, तो परमेश्वर जो है हमेशा जो है जो गलत थे, जिन्हें सुधार की जरूरत थी, परमेश्वर उन्हें सुधारते थे, और वो उनकी गलतियों का एहसास कर परमेश्वर पर दोबारा आते थे, परमेश्वर उन्हें आशीष कर आगे ले चलते थे। या कि उन लोगों पे जिन्होंने परमेश्वर के विरोध में कुटकुटाया या फिर विरोध में बात की, वो इस दुनिया से चल बसे। Why I brought that statement is in the verse 25. मैंने क्यों ये वचन आपसे ये वाक्य आपसे कहा कि 25वां कलाम में हम ये पढ़ते हैं, And he said to them, O foolish ones and slow of heart to believe all that the prophets have spoken. तब उन्होंने उन्हें देखकर ये कहा, हे निर्बुद्धियों और भविष्यवक्ताओं की सब बातों पर विश्वास करने में मंदितियों। And the verse 26 said, was it not necessary that the Christ should suffer these things and enter into his glory? और 26वां कलाम हम इस प्रकार पढ़ते हैं, क्या ये आवश्यक न था कि मसीह ने ये दुख उठाकर अपनी महिमा में प्रवेश करे? Like I said before, and Lord himself says it, he submitted himself for a greater glory and got crucified and went through all those sufferings. देखिए, मैंने पहले भी याद दिलाया कि परमेश्वर ने एक बड़े महिमा के लिए अपने आप को समर्पित किया, और इसीलिए वो सूली पर चढ़कर अपने प्राण को वहां पर अर्पण करते हैं। And here my loving Lord is also correcting those two. What happened and versus what they were saying. और यहाँ पर यीशु मसीह जो है उन्हें भी सुधार की सुझाव देते हैं, कि उन्हें सही करते हैं कि क्या गलत वो कह रहे थे और हकीकत में सच क्या है। And the verse 28 it says, so they drew near to the village to which they were going. He acted as he was going farther. 28वां कलाम में हम ये पढ़ते हैं कि इतने में वो जो गांव में पहुंच गए, वहां पे जो जा रहे थे, और उन्होंने ढंग से ऐसे जाना पड़ा कि वे आगे बढ़ते चलते गए। First we saw the Lord got closer to them, kept himself from realizing who he was. पहले हम ये देखते हैं कि मसीह जो है उनके पास गए,
और जो है वो कौन थे उन्हें पता नहीं चला, और अपने आप को वो उनकी आंखें बंद किए हुए थे। And then here we see that he acted as if he's going further. और यहाँ पर हम ये देखते हैं कि उन्होंने मसीह ने इस प्रकार से ये किया कि वो आगे और चल कर जा रहे हैं। But they urged, in the following verses it says, but they urged the Lord to stay with us toward the evening, and the day is now far spent, so he went in to stay with them. आमीन। उसके अगले वचन में हम ये देखते हैं कि परंतु उन्होंने ये कहकर रोका कि हमारे साथ रुक जाए, क्योंकि संध्या की समय चलती गई है और दिन अब बहुत ढल चुका है। तब वह उनके साथ रहने के लिए भीतर गए। I want to ask you a question. Why do you think the Lord acted and going further, even though he wanted to be with them and talk to them? मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि क्यों परमेश्वर ने ऐसे वहां पर इस प्रकार से एक्ट किया कि उन्हें और आगे जाना था, बल्कि परमेश्वर को उनके साथ आखिर में जाके परमेश्वर ने उनके साथ जो है वहां पर वो उस रात उन्होंने बिताया। From the beginning of the universe, or the beginning of the scripture, or beginning of the world, Lord has given us the option of free will. देखिए, संसार की शुरुआत से ही जो है परमेश्वर ने हमें एक आजादी दी है। And then he wanted to see if they are going to invite him into our life. परंतु वो वहां पर ये देखना चाहते थे कि क्या ये दो व्यक्तियां उन्हें अपने जीवन की ओर आमंत्रित करते हैं या नहीं। That's also a part of correction, and also many a times we have to invite Jesus into our life, accept him as our savior and resurrection of life. देखिए, वो भी एक सुधार का एक भाग है। अनेक दफा जो है हमें यीशु मसीह को अपने जीवन में आमंत्रित करना होता है, उसे अपना खुदा परमेश्वर को स्वीकार कर मन फिराकर मसीह के पास आना बहुत जरूरी है। In Bible again we see in Matthew there's a Canaanite woman who comes to Jesus, and Jesus acts there, ignoring her and walking away. देखिए, पवित्र वचन में हम जो है मत्ती सुसमाचार में भी ये देखते हैं कि एक कनानी स्त्री के पास जो है वो यीशु मसीह के पास आती है, और यीशु मसीह जो है उन्हें उसे नजरअंदाज करते हुए जो है आगे चलकर जाते हैं। But the Lord, she keeps on pleading and begging. It seems to like Lord was really cruel there. देखिए, और वो कनानी स्त्री जो है परमेश्वर के पीछे पीछे जो है वो गिड़गिड़ाती हुई रोती हुई आती है, और हमें इस प्रकार दिखता है कि परमेश्वर वहां पे थोड़े जो है थोड़े जो उनका जो क्रूअल थे कर हम वहां पर देखते हैं। But the Lord wanted to bring out her faith so that it could be said out loud that your faith is greater. परंतु परमेश्वर वहां पर उस स्त्री के विश्वास को परखना चाहते थे कि उसका विश्वास बाहर आए, और उसका विश्वास सबसे बड़ा है, ये बात जो है वहां पर मसीह को देखना था। In Luke chapter 24 verse 30 says, when he was at the table with them, he took the bread and blessed it and broke it and gave it to them. 30वें कलाम में लूका रचित सुसमाचार 24 के 30 में हम ये पढ़ते हैं, जब वह उनके साथ भोजन करने बैठे तो उसने रोटी लेकर धन्यवाद किया और उसे तोड़कर उनको देने लगे। And the verse 32 it says, they said to each other, did not our hearts burn within us while he talked to us on the road, while he opened to us the scriptures? 32वां कलाम में हम ये पढ़ते हैं कि उन्होंने आपस में कहा, जब वह मार्ग में हमसे बात करता था और पवित्र शास्त्र की अर्थ में हमें समझाता था, तो क्या हमारे मन में उजरते ना उत्पन्न हुई? And I would like to read the verse 34 saying, the Lord has risen indeed and has appeared to Simon. 34वां कलाम में इस प्रकार हम पढ़ते हैं कि वे कहते थे, प्रभु सचमुच जी उठा है और वो सिमोन को दिखाई दिया। See how being hopeless, hoping that Jesus Christ was the Redeemer, to the verse 34, once Jesus was invited with them, he broke the bread. And we see that once he broke the bread, he disappeared. हम ये देखते हैं कि जब यीशु मसीह उनके घर पर आकर साथ में रोटी तोड़े, तो जो है यीशु मसीह वहां से चल बसे थे कर हम यहाँ पर देखते हैं। And they discussed with each other, didn't our hearts burn within ourselves, because their eyes were open to realize that it was Jesus. और जो है वहां पर ये पढ़ते हैं कि उनके मन में जो है वो उत्तेजना ना उत्पन्न हुई कि जब उन्हें ये पता चला कि वो यीशु मसीह था जो उनके साथ चलकर उनसे बातचीत कर रहे थे।
And they said with each other, and they returned to Jerusalem, saying that indeed the Lord was risen. और जो है वो आपस में बातचीत करने लगे और यरूशलेम की ओर वापस मुड़ गए और वो ये कहने लगे कि सचमुच यीशु मसीह जीवित था। And in Hebrews 11, verse 1, I would like to read, now faith is the assurance of things hoped for and the conviction of things not seen. इब्रानियों की किताब उसके 11वां वचन के पहला वाक्य में इस प्रकार पढ़ना चाहता हूं, और विश्वास आशा हुई की वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। As I stated, the Lord saw that they were taking a wrong message to a different city, and the Lord appeared to them, knew what the desire of their heart is, corrected them, and then He got invited with them. हम यहाँ पर ये देखते हैं कि जो है यीशु मसीह जो है दो व्यक्तियों के साथ चलते हैं, उनकी गलत चिंताओं को जो है वो वहां पर सुधारते हैं, उनके साथ वो सफर करते हैं, उनके घर बैठकर रोटी तोड़ते हैं और वो वापस लौट कर आते हैं। ये बात को हम यहाँ पर देखते हैं। Our Jesus is alive. यीशु मसीह जीवित है। He's coming back. और वो जल्द दोबारा लौट कर आ रहा है। He died on the cross. उनकी सूली पर वो मृत्यु पाए। And he was resurrected on the third day. और तीसरे दिन वो जी उठे। And they go back and share this gospel, and they confirm it once again that Jesus is alive. जो है वो दोबारा चलकर जाते हैं और वो तीसरे दिन जो है ये वचन को वो वापस से कहते हैं कि सचमुच यीशु मसीह जीवित है। The story of Emmaus states about being hopeless and taking a road to Jesus appearing them and having reassured that Jesus is alive. देखिए एमस की ओर की सफर जो है एक बिना कोई आशा के साथ, बिना कोई विश्वास के साथ का एक सफर था, परंतु जहां पर वो पहुंचने के बाद जो है यीशु पर उनका आशा और विश्वास बढ़कर आता है। I would like to conclude stating that last week, couple weeks, Pastor is taking a series, and one of the series was renewing your thoughts and your mind. देखिए मैं यहाँ पर संक्षेप करना चाहता हूँ। पिछले कुछ हफ्तों से महेश पास्टर जी ये विषय के साथ बात कर रहे थे कि अपने चिंताओं को, अपने विषयों को जो है बदलना या फिर उसे दोबारा सोचना, उसके बारे में वो बात कर रहे थे। Here the disciples need to renew their thoughts, or to renew who actually Jesus is, and to believe in him and take a message that Jesus is alive and not that he was alive. देखिए यहाँ पर चेलों का एक नवीकरण देखते हैं, उनकी चिंताओं में एक सुधार हम देखते हैं कि वो ये विश्वास के साथ आते हैं कि यीशु मसीह हकीकत में वो जीवित है और वो हमारे बीच में है। God bless us with this verse. परमेश्वर हमें इस वचन के साथ आशीष करे। And I once again thank you, Pastor. एक और बार मैं पास्टर जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। And Brother Solomon. Thank you. God bless you. Let us continue with the service. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus.